हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का। देखो ये कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स एज शोन इन फिगर। ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स हैं जिसका कि अंदर का रेडियस R2 है, बाहर का रेडियस कितना है R1 है। टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स whose inner radius is R1 and inner radius is R2 and outer radius is R1. We have to find out the just mutual inductance of pair of concentric coils. We have to find out the mutual inductance of these combinations pair of coils. Okay, so we know that for mutual inductance we are discussion about the mutual inductance. What is the mutual inductance? Let us suppose there are the two coils, first coil and second coil. We are discussion about the mutual inductance. Okay, current in first coil, let us suppose, is the I1. Okay, and magnetic field due to first coil, due to this is the, let us suppose, first coil and this is the second coil. Magnetic field due to a first coil, let us suppose, is going on these situations. This is the magnetic field. Okay, this is the magnetic field for these combinations. Okay, so magnetic field due to a first coil is going, let us suppose, a B1. Then same आपका magnetic field on second coil, this is the also B1 because the second coil is nearby the first coil. So if magnetic field on first coil is B1, then magnetic field on second coil also is B1 because this coil, second coil, is kept near the first coil. Okay, and if we can say, if current in first coil I1 will be increased, if current in first coil I1 will be increased, then magnetic field B1 will be increased, but magnetic field due to a first coil is going on the second coil magnetic field. So B1 is also increased. If B1 is increased, then we can say the flux is also increased on second coil. The flux is increased on second coil. Okay, increase means the flux is changing. Increase also no change, and flux will be the change. Okay, if any quantity change, then that quantity will be decreases or increases. Imply that we can say the flux in second coil will be the phi2. So phi2 will be the increases. Okay, if flux will be increases or decreases, then induced EMF will be created. Okay, so induced EMF on second coil will be created. Let us suppose the E2. If circuit is a complete, then induced current will be gets means if circuit will be complete, then induced current will be gets, but induced EMF must be created here. Imply that we can say induced EMF will be gets and induced current will be gets. Okay, on second coil. Okay, but we are current increases in first coil, increases or decreases, then magnetic field will be increases or decreases, then flux will be increases or decreases. If flux will be changes, then we get the induced EMF. Okay, induced EMF will be get and induced current will be get. Then this combination are known as the mutual inductance. ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस को आपको शो करेगा। मतलब कि इसमें करंट I1 है, इसमें कोई करंट नहीं है। दोबारा हम लोग बताए थे, इसमें करंट I1 है, इसमें कोई करंट नहीं है। इस I1 की वजह से जिसमें करंट फ्लो करती है उसको हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी कॉइल। ये कौन सी कॉइल है हमारे पास? दिस इज द प्राइमरी कॉइल्स है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल्स होगा, जिसमें करंट फ्लो करी प्राइमरी कॉइल्स होगा। जिसमें इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट होगा मिलेगा, वो क्या होगा हमारे पास? सेकेंडरी कॉइल्स होगा। ये क्या होगा हमारे पास? सेकेंडरी कॉइल्स होगा। मतलब कहने का सेंस ये है, यदि यहाँ पे करंट हम लोग इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, करंट कांस्टेंट होने पे हमें E इंड्यूस्ड या I इंड्यूस्ड नहीं मिलेगा।
करंट वेरिएबल हो, वेरिएबल होने के सेंस क्या है, करंट इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तब हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी। सेकंड कॉइल ए के फर्स्ट के बगल में है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो सेकंड कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, वही हमारा क्या होगा, आपका फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिकल जो फ्लक्स होगा वो हमारा क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, सॉरी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। ये तो फ्लक्स में कोई चेंज होता है तो हमें क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। सर्किट क्लोज है तो हमें क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें मिलेगा, यही कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हम लोग ये बोले हैं हटाने के लिए रफ, जैसे हम लोग ये बोले हैं इसके अकॉर्डिंग फ्लक्स ऑन सेकेंड कॉयल टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है, I1 है। ठीक है, फ्लक्स ऑन सेकेंड कॉयल, टोटल फ्लक्स ऑन सेकेंड कॉयल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है, हमारा I1 है। मीन्स I1 बढ़ेगा या घटेगा, तो फ्लक्स सेकेंड कॉयल में जो टोटल होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो I1 के ऊपर डिपेंड करेगा। I1 क्या है, प्राइमरी कॉयल में हमारा करंट है, इसका मतलब φ2 टोटल क्या है हमारा, सेकेंडरी कॉयल में हमारा क्या है, टोटल आपका फ्लक्स है। ये बढ़ेगा घटेगा तो करंट I के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। इसका मतलब बोलेंगे हम लोग ये बोल सकते हैं, सेकेंडरी कॉयल में जो टोटल फ्लक्स होगा वो करंट प्राइमरी कॉयल में जो करंट होगा उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होगा। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी कॉयल में जो टोटल हमारा जो फ्लक्स होगा इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटेगा, एक कांस्टेंट आपका हमारा m आएगा, इनटू क्या होगा हमारे पास I1 होगा। इस m को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। ये प्रोसेस हमारा क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस m को बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, टोटल फ्लक्स ऑन सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाई करंट ऑन क्या, प्राइमरी कॉइल, यही हमारा क्या होगा, हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो इस प्रोसेस में वही चीज़ हमें निकालना है। ठीक है, इनके बीच में दो कॉइल्स हैं, इसमें क्या सर्कुलर कॉइल्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें निकालना है, m निकालना है। आप ऐसे लिख सकते हो, फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में टोटल इक्वल टू m इंटू कितना होगा हमारे पास, I1 होगा। m इंटू कितना होगा हमारे पास, I1 होगा। फाइंड द कोफिशिएंट, देखो करने का तरीका क्या है, ध्यान देना। एक काम करते हैं, हम लोगों को म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो करने का तरीका आपका यही होगा, इसको हम लोग, इसमें करंट हम लोग क्या मानते हैं, I1 माने। करंट कितना होगा हमारे पास, I1 मानते हैं, करंट I1 इसमें होगा, तो इस आपका जिसमें करंट होगा उसको मानते हैं हम लोग प्राइमरी कॉइल मानते हैं। अब ये हमारा क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल होगा। तो पहले कॉइल में जो करंट I1 है, पहले कॉइल में जो करंट I1 है, इसके कारण इसके सेंटर पे हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू जितना क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, इस सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा। लेकिन 5 क्या होता है, B.A होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्या होगा, एरिया होगा। मतलब प्राइमरी कॉइल में जितना करंट होगा, इसकी वजह से हमने एज्यूम किया है, लेट अस सपोज किया है प्राइमरी कॉइल में करंट कितना है, I1 है, तो इसके वजह से हम लोग सेंटर पे क्या निकालेंगे, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। मतलब कि O पे हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो कहने का सेंस आपका ये है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ प्राइमरी कॉइल B1 इक्वल टू,
अब ये देखिए ये डिस्टेंस कितना है, r1 है। एक सर्कुलर कॉइल की वजह से जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वो क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बीटा अपान क्या होता है, r होता है। बीटा क्या होगा, रेडियन में एंगल होगा टोटल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग निकालते हैं सर्कुलर कॉइल की वजह से, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बीटा, आई कितना है, i1 है, बीटा कितना होगा, टोटल एक आपका सर्कुलर है 2 पाई होगा, डिवाइड बाई r कितना है हमारे पास, जस्ट r1 होगा, क्या होगा, r1 होगा। तो 2 पाई डिवाइड बाई कितना है, r1 है। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉइल में हमारा क्या है बोलो, फर्स्ट कॉइल की वजह से हमारा क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b1 है। देन b1 इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई i1 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई कितना है, r1 होगा। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, देखो b1 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखो हम लोग करने का तरीका आपका क्या होगा, प्राइमरी कॉइल में जो करंट होगा इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड O पे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और इनटू क्या करेंगे, इसमें एरिया वेक्टर निकालेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एरिया वेक्टर निकालेंगे R2 में। ये सेंटर क्या है, O है, सेंटर क्या है हमारे पास, O है, ठीक है। ये कितना हमारे पास, जस्ट R2 है। तो ये हमारे पास क्या है, आपका सेंटर O है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें इस आपका सेकेंडरी कॉइल से जितना फ्लक्स जाएगा वो हमें निकालना है। ध्यान देना, फ्लक्स ड्यू टू अ सेकेंडरी कॉइल टोटल इक्वल टू, फ्लक्स क्या होता है, बी वेक्टर डॉट क्या होता है, ए वेक्टर होता है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फर्स्ट कॉइल है, प्राइमरी कॉइल। आपका एरिया किसका, सेकेंडरी कॉइल का, एरिया फॉर सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू, तो b1 डॉट कितना होगा, A1 आपका A2 वेक्टर होगा। b1 डॉट कितना होगा हमारे पास, A2 वेक्टर होगा, ठीक है। तो b1 डॉट जो A2 वेक्टर होगा ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या हमारा आउटवर्ड है, देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। राइट हैंड आपके रूल के अकॉर्डिंग ये करंट होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को डिपेंड करेगा, जिधर फिंगर कर्ल करेगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा, जिधर थंब जाएगा वो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो ओ पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा हमारे पास, बाहर की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की ओर है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस पे बाहर की ओर है। इस पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड हमारा पास क्या है, आपका ये क्या है, बाहर की ओर है। एरिया वेक्टर भी हम लोग क्या मानते हैं, बाहर की ओर मानते हैं। जो A2 होगा वो भी हमारा क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो इसका मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना है हमारे पास, 0 है। तो करते हैं B1 इंटू A2 इंटू कास 0, B1 इंटू A2 इंटू क्या है, कास 0 है, इक्वल टू B1 मालूम है और हम लोग क्या निकाल देंगे, A2 में मालूम है। देखो B1 कितना है हमारे पास, रखते हैं म्यू नॉट कितना है, ये आपका 2 होगा, म्यू नॉट बाई आपका 2 होगा, और कितना होगा हमारे पास, I1 डिवाइड बाई कितना है, R1 है। ये हमारे पास क्या है, जस्ट आपका फ्लक्स 2 पे टोटल, म्यू नॉट बाई 2 I1 डिवाइड बाई कितना है हमारे पास, R1 है, ठीक है। अब हम लोग आगे निकालते हैं इंटू A2 कितना है, पाई इंटू क्या है हमारे पास, R2 स्क्वायर है, पाई इंटू कितना है, R2 स्क्वायर है। तो ये हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स 2 पे टोटल इक्वल टू म्यू नॉट है डिवाइड बाई कितना, 2R1 इंटू I1 है इंटू पाई इंटू कितना है, R2 स्क्वायर है, इक्वल टू M, देख लो टोटल फ्लक्स सेकेंड पे इक्वल टू M म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू करंट इन प्राइमरी कॉइल इक्वल टू, करंट इन प्राइमरी कॉइल कितना है हमने एज्यूम किया है, I1 एज्यूम किया है, ठीक है। I1 से I1 कैंसिल होगा, तो इसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2R1 इंटू पाई इंटू क्या होगा हमारे पास, R2 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा, इस आपका कॉइल का हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक आपका इस कॉइल का क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होगी म्यू नॉट बाई 2R1 इंटू पाई इंटू R2 स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखो ये है, हम लोग पहले कॉइल में करंट कितना है, R1 है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ध्यान देना, म्यू
M21 होगा M21 इक्वल टू M12, दोनों वैल्यू हमारी सेम होंगी। इसका मतलब क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 पे 1 के कारण हमारा जितना वैल्यू आएगा, मतलब करंट ऑन 2, ओके, करंट ऑन 2, ठीक है, करंट ऑन 2 ड्यू टू 1 जितना आएगा वही करंट ऑन 1 ड्यू टू 2 आएगा। कहने का सेंस क्या है, पहली कॉइल में, बाहर की कॉइल में करंट I1 माना, ठीक है, तो यहाँ पे जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो हमने निकाला। अब ऐसा भी कर सकते हैं, अंदर की कॉइल में हम लोग करंट मान लें। क्या करें, अंदर की कॉइल में हम लोग करंट मान लें, तो अंदर की कॉइल में जो हमारी करंट होगी, ठीक है, इसकी वजह से इस पूरे में हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा ही क्यों किया है, देखो दोनों से हम लोग आंसर सेम आएगा। ऐसा इसलिए किया है, बाहर की वजह से हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला ना, तो यहाँ पे ये देखो, इसमें बाहर से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, लगभग हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि R1 हमारा R2 से क्या है, जस्ट R1 हमारा R2 से क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जब बहुत बड़ा होगा तो इसका मतलब R1 जब R2 से बहुत बड़ा होगा तो हम लोग जो B हम लोग यहाँ पे मानेंगे वही यहाँ पे, वही वहाँ पे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। ये तभी यूज होगा जब क्या होगा, हमारे पास R1 R2 से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो R1 R2 से बड़ा होगा, मतलब कि इस बाहर की कॉइल के कारण यहाँ पे जो B होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो लगभग इस हर एक पॉइंट पे क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो हम लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें करंट I1 माने यहाँ पे निकालें, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। ऐसा क्यों, इसमें करंट हम लोग मानेंगे, करंट यदि यहाँ पे होगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इस करंट की वजह से बाहर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, इधर भी हर जगह हमें मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना पड़ेगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बोलो, वेरिएबल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल इनटू टोटल जो एरिया होगा, पाई इंटू कितना, R1 स्क्वायर, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा क्योंकि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करी, बदल रही है। R1 बहुत बड़ा है किससे, R2 से, तो मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट में बदलेगा। यहाँ पे हमने क्या माना है कि R2 बहुत बड़ा है किसमें, R1 से, सॉरी R1 बहुत बड़ा है R2 से, तो R2 बहुत ही छोटा होगा, तभी हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमने माना है उसमें क्या होगा, लगभग सेम होगा। लेकिन यदि इसमें करंट मानते हैं तो इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, हमारा वेरी करेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वेरी करेगा, तो वेरी करेगा तो उसको निकालना काफ़ी का आपका टफ हो जाएगा। तभी सबसे ईजीएस्ट हम लोग लेते हैं कि बाहर में हम लोग करंट मानते हैं, करंट मान के यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और इनटू इतने का एरिया करते हैं, इतना टोटल जितना फ्लक्स होगा सेकेंडरी पे, और इसके बाद इक्वल टू M इंटू I1 करते हैं, वही हमारा क्या होगा, M होगा। M कितना होगा, μ0/2 R1 इंटू पाई इंटू क्या होगा, R2 स्क्वायर होगा। ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा M है।